A very good afternoon to all the students, delegates, and faculty members of Arya Mahila PG College. I, Dr. Meenakshi Bajpayee, on behalf of Anti-Sexual Harassment Cell and Student Welfare Committee, welcome you all in this today's program on the topic Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition, and Redressal Act 2013. I would like to welcome today's speaker with us, Professor Vibha Tripathi, Professor Rachna Dubey ma'am, our principal, and all the faculty members. Now I request Professor Rachna Dubey, our principal madam, to welcome officially all the delegates and our students. Ma'am. कुछ नेटवर्क का इशू है क्या? हमारे यहाँ से चला गया है? देखिए बस हम बोल रहे हैं. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Ma'am, principal ma'am. Oh, I was not audible. No ma'am. तो बोलना चाहिए ना. मैम हम लोग बोल रहे थे, वो कनेक्शन का कुछ दिक्कत हो रहा था, आवाज नहीं जा रही थी. सुनाई नहीं, लोग कोई सुना नहीं. Okay, sorry for the interruption. I would like to congratulate the Anti-Sexual Harassment Committee of Arya Mahila PG College as well as the Student Welfare Committee of Arya Mahila PG College for organizing this webinar on the topic Anti-Sexual Harassment at Workplace, Prevention, Prohibitions and Measures, which has been actually it been asked by the UGC for all the colleges to organize such on this topic a webinar in the college so that the awareness is created among the staff as well as among the girl student about their rights, about the harassment against the sexual harassment. So, but I think so. This act was passed in 2013, but it was implemented today, 9th of December. But Professor Vibha Tripathi, who is a senior most professor in the Faculty of Law of BHU, will be throwing light on this to our students and all the participants of this webinar. Madam, on behalf of the college, Arya Mahila PG College and the committee which is organizing this webinar, I render my warm welcome to you. और पहली बात तो एक बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस में आपने हम लोग का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. एंड वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मैनेजमेंट एंड माय स्टूडेंट्स. और ये हम लोग ने उम्मीद ही नहीं किया था कि आप तुरंत मान जाएंगी, लेकिन रियली इट्स वी आर ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल टू यू. और हम लोग पहले सोच रहे थे क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमको यूजीसी से भी मिला है लेटर कि वी हैव टू ऑर्गेनाइज सच टाइप ऑफ वेबिनार ऑन दिस टॉपिक. तो हम लोग सोचे कौन इस पे ज्यादा लाइट थ्रो करेगा, क्योंकि हम लोग के लिए तो हम लोग का फील्ड है ही नहीं. तो पता नहीं कैसे आप हम लोग लॉ फैकल्टी में देख रहे तो आपका नाम देखा, बोले हाँ शी विल बी द राइट पर्सन हु कैन थ्रो लाइट ऑन दिस एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग अस. तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन. एंड मेरे स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स इससे जरूर उनको मतलब द अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड अमंग देम. एंड नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम बिकॉज इस टॉपिक के एक्सपर्ट तो हम नहीं है, आप है, तो ज्यादा समय आपको हम लोग देना चाहेंगे और आपको सुनना चाहेंगे. तो मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Bindu Lahiri, ma'am, to please throw light on today's topic. Ma'am, over to you.
बिंदु मैम की आवाज नहीं आ रही है। वो दिखाई भी नहीं दे रही हैं। मैम एक सेकंड, मैम अपने फोन से जुड़ी थी हम। अच्छा, जुड़ गई, दिख गई। नहीं जुड़ी है मैम, मैम बोल चुकी वही मैम, प्रिंसिपल मैम की तरह। एक सेकंड लीजिए। ठीक है। नमस्कार, मैं ऑडिबल? हाँ, now you are audible. मैडम विभा त्रिपाठी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आपको हम अपने बीच पा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो विषय है वो है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या। जो डेफिनेशन हमें मिलता है उसका अगर हम सार देखें तो यही है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इज एन अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, unwelcome request for sexual favors or other unwelcome conduct of a sexual nature, which makes a person feel offended, humiliated, and or intimidated, where a reasonable person would anticipate that reaction in the circumstances. पता नहीं, हम नहीं समझ सकते कि आज कैसी विडंबना है हमारे देश की कि जो भारतवर्ष जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, कन्या के जन्म के साथ ही कन्या पूजन, कन्यादान, मातृ पूजन, शक्ति अधिष्ठात्री, न जाने कितनी विशेषणों से अभिहित किया जाता है, विभूषित किया जाता है, वहां हम इस दौर में आकर खड़े हैं कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम लागू हो सके, ऐसा संभव हो, इसकी जानकारी सबको हो, हर युवा इससे सचेत हो कि इस अधिनियम या यूं कहें कि यौन उत्पीड़न अर्थात सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और इससे एक्ट 2013 के तहत किस तरह से जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने आप को इस वातावरण में सुरक्षित रख सके। इसी जागरूकता हेतु हमारे बीच आप प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैम उपस्थित हैं। आप BHU लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। आपने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, आपके रिसर्च पेपर्स भी नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में भी प्रकाशित हुए हैं। आप हमें विशाखा भैरवी जो इंसिडेंस हुआ था, विशाखा इंसिडेंस तथा निर्भया इंसिडेंस, जिन सब से हम लोग भली भांति परिचित हैं, फिर भी आज भी समाज में ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और किस तरह से हम अपने आप को इन घटनाओं से सुरक्षित रह सकते हैं, इस पर क्या क्या एक्ट है, क्या क्या अधिनियम है, क्या क्या सरकारी सुविधाएं हमें उपलब्ध है, जिन चीजों से हम अभी भी वाकिफ नहीं हैं, हमारे बच्चे इससे वाकिफ नहीं हैं, इन सारी चीजों को जिनसे हमारे बच्चे जागरूक हों कि क्या हमारे पास क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करके न सामने आते हुए भी इनको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और किस तरह से हम अपनी बचाव कर सकते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी मैडम आप सबको हमें भी प्रोवाइड करेंगी। इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। पहले मीनाक्षी जी आपसे परिचित करवाएंगी आपके इतने गौरवान्वित व्यक्तित्व से, उसके बाद बच्चे आपसे
सुनेंगे आपकी बातें डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी। मुझे लगता है बहुत ज्यादा परिचय हो गया, अब और Thank you, परिचय ma'am. की जरूरत है। थोड़ा सा जरूरत है। मैम लेट देम स्टूडेंट्स आल्सो लर्न कि क्या चीजें करनी चाहिए अपनी लाइफ में जब हम इस प्लेटफॉर्म पे बुलाए जाएं, एटलीस्ट दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड। सो थैंक यू बिंदु मैम, एंड इट इज माय ऑनर इंडीड, most probably it is my honor to introduce Professor Vibha Tripathi ma'am, because yesterday when I got this notification from ma'am and I heard and I learned the first line कि ma'am is the first lady professor of law, faculty of law, Banaras Hindu University, so it was a pleasure for me indeed. So BHU is its glorious history of 100 years. Professor Vibha Tripathi ma'am is the professor of faculty of law. She stood first in all her exams and received national and UGC merit scholarship. She did her PhD from the Faculty of Law, Banaras Hindu University itself. The topic of her PhD thesis was Contempt of Court, Democracy and Judicial Accountability. Her book, Contempt of Court and Freedom of Speech, Exploring Gender Bias, was published by Redworthy Publications, New Delhi in 2010. She has been resource person several times in orientation and refresher courses. She also delivered keynote speakers in various national seminars and chaired various technical sessions as well. She has organized national seminars and workshops on gender sensitization. Her write-ups have been published in various reputed journals, including various, to name one is EPW. She is also a columnist in Jan Satta and national level daily Hindi newspaper. She has worked in All India Radio for 5 years and still delivers talks in Akashvani and Varanasi Doordarshan. Dr. Tripathi has received many awards such as the President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma Gold Medal for being adjunct as best student of the Banaras Hindu University, the Vidushi Ratna Samman, the Vishishta Shikshak Samman and the Bharat Jyoti Award are also there of her credit. She has served Banaras Hindu University in various capacities, including member of Academic Council. She has served as founder, administrative warden of Working Women's Hostel. Presently, she is a member of various bodies of Banaras Hindu University, including the Legal Cell and the Women Grievances Cell. She has also been member of various fact-finding committees to inquire the cases of dispute among Banaras Hindu University law faculties and others. Her areas of special interest are feminism and legal status of vulnerable classes. So this was a very brief introduction of ma'am. Now I would like to request on behalf of college, ma'am, to please deliver your talk and make our students more insightful and more fruitful. Thank you, ma'am. हाँ, मीनाक्षी जी मैम. मीनाक्षी एक मिनट, ये विभा जी जो है हमारी जो MU है श्री अरविंदो सोसाइटी का, उसकी भी मेंबर है और हमारे यहाँ लेक्चर दे चुकी हैं आकर के। चलिए मैम, एक तो- और एड ऑन हो गया. हाँ, उनको पता है, वो मेंबर है हमारे यहाँ की जी और वो मैम. आ चुकी हैं, वो खुद बताएंगे। हॉल में, बड़े वाले हॉल में उनका लेक्चर हुआ है। बिंदु ने इसीलिए कहा पुराना परिचय है। जी ठीक मैम. है, थैंक यू, आप कंटिन्यू करिए। जी. Respected Principal Ma'am, Rachna Ma'am, Bindu Ma'am, ब्रिजबाला मैम, मीनाक्षी, सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है और जैसा कि मैडम ने कहा कि मैं पहले से आर्य महिला से जुड़ी हुई हूँ अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, और जब वो आयोजन होता था और हम लोग वहाँ किसी न किसी भूमिका में रहते थे, कभी कोई धन्यवाद देना है, कभी कुछ और करना है, तो बहुत आध्यात्मिक एक पृष्ठभूमि होती थी। और बिंदु मैडम जब उसका संचालन करती थी या कुछ और कोई गीत प्रस्तुत करती थी तो माहौल बिल्कुल भक्तिमय हो जाता था। और एक और संस्मरण आर्य महिला के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरा BA का एंट्रेंस PHU का था, वो एंट्रेंस का सेंटर आर्य महिला में ही पड़ा था। और उस आर्य महिला में मैं पहली बार BA का एंट्रेंस देने के लिए गई थी और उसके बाद मैं BHU से जुड़ी और फिर मेरी BA, LLB, LLM, PhD सारी पढ़ाई BHU से हुई। तो यानी आर्य महिला में मेरा प्रवेश मेरे लिए बड़ा शुभ था
और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी ब्रिजबाला मैडम को कि जिस बार उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी बोलने की, उस समय हरिकेश सिंह सर भी थे वहां पर, और फिर उन्होंने मेरा चयन जो आपने अभी पढ़ा कि मैत्री भवन में मुझे विशिष्ट शिक्षक सम्मान मिला है, वो उस समय मेरा चयन उसके लिए हुआ। तो ये भी कह सकते हैं कि वो दोबारा एक गुड लक वहां काम किया। तो और आज जब कल रचना मैडम ने मुझे बोला कि नहीं आपको बोलने के लिए कहा, तो मुझे लगा कि एक दायित्व जब आता है किसी भी महिला के ऊपर विशेष तौर पर, तो वो ये कभी उसको इग्नोर नहीं करती। आप समझ लीजिए कि कहीं भी आप देखें, जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब तक कि वो बहुत आवश्यक ना हो, हम उसे टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही मैडम को यूजीसी का लेटर प्राप्त हुआ, मैडम ने सोचा कि नहीं, तुरंत हम इस पर ऑर्गेनाइज करते हैं और आज हम व्याख्यान आयोजित करते हैं। और चूंकि हम लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बताऊं कि अधिनियम नहीं आया था तब भी हम लोग इस पर बात करते थे, अधिनियम आया, उसके बाद इसमें क्या खामियां महसूस हुई, फिर 2018 में 5 वर्ष इसके जब होने को थे, तो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रीजनल कॉन्फ्रेंसेस कर करके इसकी कमियों को निकालने और ढूंढने की कोशिश की। उसमें फिर हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, वहां पर भी हम लोगों ने पूरे एक्ट की बिल्कुल थ्रेडबेयर एनालिसिस जिसको कहते हैं, वो करके हम लोगों ने इसको फिर प्रेजेंट किया। वहां पर भी हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी, खास तौर से यहाँ विमेन ग्रीवांस सेल से भी जुड़ी हुई हूँ, तो वहां पर भी लगता है कि नहीं, बच्चों को क्या दिक्कतें आती हैं और किस तरह की चीजें होती हैं। हम लोग सब कैसे पढ़ाई किए हैं, कैसे हम लोग विद्यालय तक पहुंचते थे, और उस दौरान क्या कुछ चीजें घटित होती थी, कैसा उसका अनुभव होता था, ये सारी चीजें महिलाओं के जीवन से बहुत गहरे तक जुड़ी हैं और उनको बहुत गहरे तक प्रभावित भी करती हैं। तो इस पृष्ठभूमि में मैं आज जो बातें आपके साथ शेयर करूंगी, वो कानून की भी होगी, उसकी इतिहास की भी होगी, उसकी आवश्यकता की भी होगी, और उसमें अभी और क्या कुछ किया जाना है उसकी भी बातें मैं करना चाहूंगी। तो मैं बता दूं कि जैसे जब भी कोई बात हमें किसी पर्टिकुलर विषय पे करनी होती है कि हमको सेक्सुअल हरासमेंट पे बात करनी है, तो ये देखना होता है कि क्या इस पर कोई लॉ है, क्या इस पर कोई ऑर्डिनेंस है जिस पर कि हम बात कर सकें। तो आप समझें कि 1970 का लगभग वो दशक था जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर बात होना शुरू हुआ, और कैथरीन मैकिनॉन का नाम लिया जाता है, जिन्होंने बार्नेस बनाम कोस्टल के केस में एक वो अटॉर्नी थी, और उन्होंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट इज नॉट न्यू टू वुमेन, इट इज द लॉ ऑफ इंजरी विच इज न्यू टू वुमेन। मतलब सेक्सुअल हरासमेंट महिलाओं के लिए नया नहीं है, बल्कि वो जो लॉ बनेगा और उनको प्रोटेक्शन देगा वो नया होगा। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न का इतिहास उतना पुराना है जितना महिलाओं के कार्य क्षेत्र में आने की तारीख, ये उतनी पुरानी चीज है। हाँ, उसके लिए लॉ नहीं था तो हम लोग उस बाबत बात नहीं कर पाते थे। तो उस केस में उन्होंने कहा कि जब भी किसी महिला को कोई लैंगिक टिप्पणी इस आशय के साथ की जाए कि अन्यथा उसका प्रभाव ये होगा कि उसे वो पद छोड़ करके जाना पड़ सकता है, कोई और दिक्कत हो सकती है, तो ये इसे लैंगिक उत्पीड़न माना जाना चाहिए। उसी समय ये बात स्थापित कर दी गई कि लैंगिक उत्पीड़न 2 प्रकार का होता है, एक क्विड प्रो क्यो हरासमेंट होता है और एक होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट। तो क्विड प्रो क्यो हरासमेंट क्या है, यानी दिस फॉर दैट, यानी आपको अगर हम ये कहें कि आप से हम सेक्सुअल फेवर लेना चाहते हैं, लेकिन बदले में हम आपको ये पद दे देंगे, ये प्रमोशन दे देंगे, ये प्रोन्नति मिल जाएगी, ये पीएचडी मिल जाएगी, तो उस फेवर को जो हम आपको दिखाते हैं, यानी वो लोभ जो दिखाते हैं, उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। और होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट ये कि हम महिलाएं जब कार्य क्षेत्र में निकलते हैं तो हमें एक सेफ और डिग्निफाइड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है कार्य के लिए, और अगर वो नहीं मिलता है, उसकी जगह पर एक बिल्कुल उससे उलट वातावरण अगर हमें मिलता है जिसमें हम अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते, तो उसे हम होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट कहते हैं।
और इसे भी आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न है। तो ये दो प्रकार स्टेब्लिश हुए। इसके बाद मैरी हाउ की एक किताब आई, इन सैटर्न्स राइट, फिर और लोगों ने सुसान ब्राउन मिलर ने काम किया, कैरोल स्मार्ट वगैरह भी इसमें आई, यानी बहुत सारे विदेशी जो हमारे फेमिनिस्ट स्कॉलर थे उन्होंने इस विषय पर काम करना प्रारंभ किया। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात, जैसा बिंदु मैम ने शुरू में कहा कि भारत में ये क्या हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये भारत की बात नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। इट इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड बी इट अ कॉमन लॉ कंट्री, बी इट अ सिविल लॉ कंट्री, बी इट मिडिल ईस्ट कंट्री, हर जगह आपको ये चीजें मिलेंगी। और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि इन देशों में आपको इसके बाबत बनाई गई विधियां दिखने को मिलती हैं। तो जब लॉज बने हैं इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए हमने कानून बनाए हैं। तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें इसको समझना है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हमारी रूट्स में जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा माइंडसेट है, वो है कंट्रोल का, वो है पावर का। और ये सेक्सुअल हरासमेंट में बहुत कुछ सेक्सुअल नेचर का नहीं भी होता है, बल्कि ज्यादा कुछ इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें हम ये आधिपत्यवादी जो हमारी सोच होती है और अधिनायकवादी जो सोच होती है वो काम करती है। और इस दृष्टिकोण से जब चीजें आ रही थी, और मैं आपको बताऊं कि 1979 में कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन आया, और इसके आर्टिकल 11 में ये बात कही गई कि महिलाओं को उनको कार्य क्षेत्र में गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, और किसी भी प्रकार का विभेद यदि वहां पर है तो उसे दूर करने की हर संभव कोशिश राज्य पक्षकारों को करनी चाहिए। और वहां ये भी स्थापित कर दिया गया कि सेक्सुअल हरासमेंट इज सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, यानी हरासमेंट केवल आपका जिस तरह की परिभाषा में दिया जाता है कि आपका कोई शोषण हो, वो नहीं है, बल्कि लैंगिक आधार पर अगर कोई भी विभेद आपके साथ किया जाता है तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन है तो हरासमेंट है। इस तरह की चीजों को आपको समझना है। तो वहां से जब बात आती है और हम अपने संविधान में प्रवेश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगता था कि महज समता के अधिकार से पूर्ण समानता नहीं दी जा सकती है, अभी भी महिलाएं कमजोर वर्ग की हैं, तो उनके लिए संरक्षणवादी विधियां होनी चाहिए, जिसके लिए अनुच्छेद 15(3) में प्रावधान किया गया, यानी स्पेशल लॉज फॉर द स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ विमेन। तो उसके तहत हम लोगों ने कुछ विशेष कानून बनाए जिससे कि हम महिलाओं को संरक्षित कर सकें। और फिर बात आती है अनुच्छेद 42 की, जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, और जिसमें ये कहा गया कि कार्यस्थल पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना राज्य का एक नीति निदेशक तत्व है। और अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है, उसमें अनुच्छेद 51A में ये बताया गया है कि सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी सभी प्रथाओं और परंपराओं का त्याग करें जो महिलाओं के मर्यादा के विरुद्ध है। तो ये मौलिक कर्तव्य में भी लिखा गया। और उसके बाद अनुच्छेद 253 आता है भारतीय संविधान का, जो ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी अभिसमय और प्रसंविधाएं बनेंगी और जिसका भारत एक राज्य पक्षकार होगा, उसके बाबत वह अपने देश में भी विधियां बनाएगा, क्योंकि उनको ये अनुकरण करने के लिए उसमें बाध्यता होती है। तो जैसे हम सीडॉ के राज्य पक्षकार हैं, हमने उसको साइन किया है, उसको स्वीकार किया है, तो उसके अनुसरण में हमें विधि बनानी थी। अब बात आती है कि पृष्ठभूमि भारत की कैसे आगे बढ़ी। तो भारत में लैंगिक उत्पीड़न के संदर्भ में कोई अधिनियम नहीं था, लेकिन जैसा कि बिंदु मैम ने नाम लिया भंवरी देवी का बलात्संग, तो जब भंवरी देवी का बलात्संग की घटना हुई और उस दौरान एक एनजीओ जो काम कर रही थी वो थी विशाखा, तो विशाखा नामक इस एनजीओ ने ये PIL दाखिल की, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े पैमाने पर ये गाइडलाइन जारी की। आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया, और उन्होंने कहा कि जब तक भारत में कोई कानून नहीं बन जाता,
अनुच्छेद 141 के अंतर्गत ये गाइडलाइन कानून का काम करेगी और उसके तहत ही सभी जगहों पर जहां महिलाएं कार्यरत हैं वहां आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ गठित करने की बात कही गई थी और उस दिशा निर्देश को लागू करने के लिए कठोरता से उसको अपनाने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो जब विशाखा की गाइडलाइन से कार्य हो रहा था आगे, उसी के बाद ये आया कि उसमें जो वर्क प्लेस है, तो वर्क प्लेस की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी संकुचित थी। तो बाद में 2012 में मेधा कोटवाल लेले का केस आया। तो मेधा कोटवाल लेले के केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको इस ले ऑफ और लाई डाउन वाले कल्चर से ऊपर उठना पड़ेगा। तो लाई डाउन और ले ऑफ के कल्चर से ऊपर उठ करके फॉरगिव एंड फॉरगेट के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके और इस बात को कि स्वीपिंग अंडर द कारपेट, ये जो हम चीजें करते हैं या पासिंग द बक कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को सौंप दें, उन सब से हमें ऊपर उठ करके काम करना होगा। तो फिर वर्क प्लेस की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा विस्तार दिया गया और फिर उसमें शामिल हो गया कि जहां कहीं भी उस उद्देश्य से कोई महिला जा रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी आपके शैक्षणिक उद्देश्य हैं, तो शैक्षणिक टूर अगर जा रहा है, एजुकेशनल टूर जा रहा है, तो वो भी आपका वर्क प्लेस होगा। तो इस तरह से कार्यस्थल की परिभाषा को न्यायिक निर्णय के द्वारा ही विस्तार दिया गया। फिर आपकी दिसंबर 2012 में निर्भया की घटना होती है और JS वर्मा कमेटी को ये दायित्व दिया जाता है कि अब वो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। तो जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, जनवरी में उन्हें दायित्व दिया गया और फरवरी में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी 2013 में। उसके एक अध्याय में लैंगिक उत्पीड़न पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई और उसके बाद फिर आप देखें कि अप्रैल में हमारा ये अधिनियम बनकर के तैयार हो जाता है और राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल जाता है। लेकिन 9 दिसंबर 2013 को इसका प्रवर्तन होता है। 16 दिसंबर की घटना आपको याद है, तो 9 दिसंबर यानी 1 वर्ष पूरा होने के पहले ये अधिनियम लागू हो जाता है 9 दिसंबर को। तो आज उसकी 8वीं एनिवर्सरी है और यही UGC को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पत्र दिया गया कि आप सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करें जिसमें कि हम लोगों को इस बात से अवगत करा सकें कि ये लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं को प्रतितोष प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान है और इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उनको संरक्षण दिया जा सकता है। तो ये बातें हुई। तो इसका मतलब हुआ कि 9 दिसंबर से ये चीजें आगे आई और अब मैं आपको बताऊं कि ये अधिनियम अस्तित्व में आ गया था। इसमें 2 स्तर पर कार्यवाही होनी थी। जैसे जिला स्तर पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि पूरे जिले में जहां कहीं भी कोई कार्यरत महिला है उसका किसी भी प्रकार उत्पीड़न ना हो और वह सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए आपको लोकल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। तो वहां LCC की बात हुई और जितने शैक्षणिक संस्थान थे वहां ICC की बात हुई कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी। फिर आपको मैं बताऊं कि UGC अपनी तरफ से भी बड़ा संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए और उसी में सक्षम रिपोर्ट तैयार हुई। तो जब सक्षम रिपोर्ट तैयार हुई, आप लोग अगर उसको गूगल करेंगे तो देखेंगे कि 250 पन्नों की वो सक्षम रिपोर्ट है, यानी कैंपस में कैसे महिलाओं को हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो इस सक्षम रिपोर्ट के आधार पर UGC ने अपना एक रेगुलेशन बनाया जो लैंगिक उत्पीड़न से निवारण के लिए विनियमन कहा गया और इसको उन्होंने मई 2016 से लागू किया। यानी अब सभी शिक्षण संस्थान जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो UGC के इस विनियमन से शासित होंगे और जहां कहीं भी कोई दुविधा होगी, कोई इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम होगी तो हम एक्ट को देखेंगे और 2013 के इस एक्ट को और स्पष्ट करने के लिए और उसको इन्फोर्स करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, तो 2013 में रूल्स भी बनाए गए। उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कैसे हमको इसको आगे बढ़ाना है, कैसे हमको इसको कार्य रूप में परिणित करना है। तो कहीं भी अगर कोई इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है तो ये एक्ट और रूल्स हमको मदद करते हैं।
अब इसके बाद हम इन तीनों को एक कोलैबोरेटिव वे में लेकर के आगे बढ़ेंगे, ताकि कि हम आपको बता सकें कि कहाँ यदि कोई डिफरेंस है तो वो क्या है और कहाँ है, और किस तरह से हमारी इस शैक्षणिक संस्था को काम करना चाहिए। अब बात आती है प्रॉब्लम की, कि शिक्षा, जिसे हमने कहा कि समस्त सुधारों की जड़ है, और शिक्षक जो शब्द ही समुच्चय था आदर्श का, मूल्य का, प्रतिमानों का, शैक्षणिक संस्था जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहां व्यक्ति के व्यवहार का मॉडिफिकेशन होता है, वहां ऐसी घटनाओं का घटित होना बहुत ज्यादा दुखद था। और आपको बताएं कि आज की तारीख में भी अगर आप पन्ना पलटेंगे अखबार का, तो आपको राजस्थान के अलवर जिले में घटित हुई घटना के बारे में जानकारी मिलेगी, जहां एक प्रिंसिपल और उसके कुछ सहयोगियों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया। अभी बनारस में आपने एक प्राइमरी स्कूल की घटना को देखा, जहां एक स्वीपर के द्वारा कुछ कृत्य को अंजाम दिया गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो अधिनियम है, इसकी मूल आत्मा और इसकी मूल बातों को शैक्षणिक संस्थान में, केवल उच्च शिक्षण संस्थान ही नहीं, वरन नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च, सेकेंडरी, सभी में इसको जाने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। यानी आप ये देखें कि कौन व्यक्ति है जिसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, कौन कर सकता है, ये सारी बातें अधिनियम में बहुत विस्तार से बताई गई हैं। तो सबसे पहले अगर एग्रीव्ड वुमेन लें, तो एग्रीव्ड वुमेन को कहा गया है कि चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे अनएम्प्लॉयड है, यानी आपके यहाँ अगर वो नौकरी कर रही है तो भी, और नौकरी नहीं कर रही है, केवल आपसे आपके यहाँ शिक्षा अर्जित करने के लिए आ रही है, तो भी वो एक एग्रीव्ड वुमेन मानी जाएगी, और वुमेन ऑफ एनी एज, यानी एज का भी यहाँ कोई राइडर नहीं है। तो वो महिला आपके यहाँ अगर है और उसको कोई शिकायत होती है तो वो एग्रीव्ड वुमेन कही जाएगी। इसके बाद आता है कि वो कंप्लेंट किसके खिलाफ कर सकती है, रिस्पोंडेंट कौन है। तो रिस्पोंडेंट में ये कहा जाता है कि वैसा कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से या शैक्षणिक संस्थान से, अगर हम कहें इन पर्टिकुलर, जुड़ा हुआ है। तो अब आप देखिए कि कोई आपका परमानेंट एम्प्लॉय है, या आजकल हम लोग संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी भी यदि कोई है, इवन की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, कोई ठेकेदार है, और ठेकेदार ने भी कुछ लोगों को अगर अपने यहाँ मजदूरी करने के लिए रखा है, वो भी परिसर में आ रहे हैं, तो वो भी इसमें रिस्पोंडेंट होंगे। यानी कितने ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है कि जिस किसी को भी आप विश्वविद्यालय परिसर में या किसी भी शैक्षणिक परिसर में कार्य करने के लिए चुनते हैं, उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें आपको ये बताना आवश्यक है कि आप किस तरह के नियमों और कानूनों के दायरे में आ सकते हैं। तो ये चीज आती है, बहुत विस्तार से परिभाषा दी गई है। और चूंकि जो हमारा 2013 का एक्ट था वो जेंडर स्पेसिफिक एक्ट था, तो उसमें केवल महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात थी। लेकिन जब यूजीसी ने रेगुलेशन बनाया तो उसमें छात्र शब्द का इस्तेमाल है, और छात्र शब्द एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। यानी आज की तारीख में यदि कोई पुरुष छात्र भी है और उसके साथ भी कोई लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो वह भी कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, और जेंडर न्यूट्रल होने के नाते उसमें ये बातें स्थापित है कि चाहे लड़की हो, लड़का हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसका की सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसको हम रेमेडी प्रदान करते हैं। तो यूजीसी के विनियमन में ये सारी चीजें, सारे ऑप्शन खुले हैं कि छात्र है, छात्रा है, थर्ड जेंडर का व्यक्ति है, किसका भी अगर हरासमेंट होता है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसको रेमेडी दी जाएगी। तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी कि कौन कर सकता है, किसके खिलाफ कर सकता है, और क्या प्रक्रिया होगी। तो बताया गया कि आपके यहाँ एक आईसीसी का गठन होगा, यानी आंतरिक शिकायत समिति बनेगी, और आंतरिक शिकायत समिति के साथ, जैसे मैं विमेन ग्रीवांस सेल की बात कर रही थी कि हम लोग विमेन ग्रीवांस सेल में हैं, तो एक
एक ऐसी समिति भी बनती है जो तत्काल उस व्यक्ति को सुनने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए बनी होती है। यानी जो ये समस्याएं आती हैं लैंगिक उत्पीड़न की, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस पीड़ित व्यक्ति को सुनना। तो लिसनिंग जब हम करते हैं, लिसनिंग के बाद ही हम उसको कंसोल कर पाते हैं, हम उसकी काउंसलिंग कर पाते हैं, और फिर हम उसको एक प्रोसेस में ला सकते हैं कि अब आपको किधर जाना है, क्या रेमेडी आपको उपलब्ध है। इस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो लिसनिंग, काउंसलिंग, कंसोलिंग एंड देन प्रोसेसिंग के लिए एक ग्रीवांस सेल होती है, और उसके बाद जब पता चलता है कि नहीं ये सेक्सुअल हरासमेंट की चीज है, तो आईसीसी तक वो बात आती है। और जब आईसीसी के पास हम लोग चले जाते हैं, तो वहां पर कैसे वो समिति कार्य करेगी, कितने दिन के भीतर आपको वो घटना की रिपोर्ट करनी है। तो ये कहा जाता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा आचरण जो अनवेलकम है, मतलब वहां शब्द लिखा गया है अनवेलकम, तो अब वो सेक्सुअल नेचर का है या नहीं है, दोनों ही दशाओं में आप जा सकते हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से अगर आपको कोई पोर्नोग्राफिक और कोई अन्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि ये उत्पीड़न है, आप असहज महसूस करते हैं। तो जब आप असहज महसूस करते हैं तो आपको शिकायत करने का अवसर मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने जब एनसीडब्ल्यू के साथ शेयर किया, तो ये कहा कि इसका एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जिसका सब्जेक्टिव परसेप्शन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब कि एक तथ्य है हरासमेंट, लेकिन कौन व्यक्ति उसको कैसे ग्रहण करता है, इसके लिए लोग भिन्न हो सकते हैं। हमें कोई चीज कब बुरी लगती है, आपको कब बुरी लगती है, दोनों में फर्क हो सकता है। लेकिन अगर हमें बुरी लगी है तो ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और मैं उसको आगे लाना चाहती हूँ। तो इस चीज को मान्यता देना बहुत जरूरी है कि अनवेलकम जो शब्द है वो किसके दृष्टिकोण से व्याख्यायित होगा, जो पीड़ित है उसके दृष्टिकोण से व्याख्यायित होगा या जो समिति है उसके दृष्टिकोण से। तो हमारा मानना है कि जो पीड़ित है उसके दृष्टिकोण से ये चीजें व्याख्यायित होनी चाहिए। तो जब वहां पर लगेगा उसको कि नहीं ये चीजें ठीक नहीं है और इसके खिलाफ मुझे आवाज उठानी चाहिए, तो जिस दिन उसको ये रियलाइज हुआ, मान लीजिए एक लंबी प्रक्रिया चल रही है और उसको एक दिन रियलाइज होता है, तो वो उस दिन कंप्लेंट करती है, या उस दिन नहीं करती है, साहस जुटाते जुटाते उसको समय लगता है। तो 3 महीने का समय दिया गया है कि जब भी उसको ऐसा महसूस हो उसके 3 महीने के भीतर वो परिवाद दाखिल कर सकती है। लेकिन यहाँ एक और स्पेस दिया गया समिति के पास कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें कि वो उन 3 महीनों में भी ना साहस जुटा पाए, तो 6 महीने का टोटल समय, यानी 3 महीने आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आप लिख दीजिए कि हाँ ये कारण थे जिसकी वजह से उसने पहले नहीं कोई परिवाद दाखिल किया और आज की तारीख में वो परिवाद दाखिल कर रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर वहां पर आती है बात कि हाँ 3 महीने के बाद आपने परिवार दाखिल किया और उसको हम लोग देख रहे हैं, और फिर उसके बाद समयबद्ध सीमा में ही कार्यवाही करनी है। यानी आपने कंप्लेंट दी तो किसके खिलाफ कंप्लेंट दी, वो 7 दिन के भीतर अब समिति क्या करेगी, उनको सूचना देगी कि आपके खिलाफ ये शिकायत है और आप इसका जवाब दें। फिर उन्हें 10 दिन के भीतर जवाब देना होगा। फिर ये इस समिति को अपनी कार्यवाही 60 दिनों के भीतर में कंप्लीट कर लेनी होगी और कार्यवाही जो है वो यूनिवर्सिटी को कर देनी होगी। यानी हर चीज एक टाइम बाउंड प्रोसेस है कि इतने समय के भीतर ये, इतने समय के भीतर ये, और यूजीसी ने और समय सीमा को कम कर दिया है। जो आईसीसी जो अधिनियम में हमारे हैं वो 60 दिन है, और लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह में ये यानी 30 भीतर ही आपको कार्यवाही करनी होगी। अपील का भी प्रावधान, अगर व्यक्ति अपने खिलाफ दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वो अपील भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊं कि ये जो कार्यवाही होती है ये जैसे इन कैमरा प्रोसीडिंग है उस तरह की कार्यवाही है, बिल्कुल गोपनीय तरीके से ये कार्यवाही होनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे ही किसी शैक्षणिक संस्था की बात होती है अखबारों में चीजें छप जाती हैं, लेकिन इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ना सिर्फ नियोक्ता की जिम्मेदारी है वरन उस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ओनर की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है। इन नो केस रिस्पोंडेंट शुड कम फॉरवर्ड। किसी भी परिस्थिति में ये चीजें आगे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ है। ये आपके संस्थान का आंतरिक मामला है कि छानबीन चल रही है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसको हम दंड देंगे। और इसको कहा गया कि जो आपके सर्विस रूल्स है, सेवा नियम है, उसमें इसको मिसकंडक्ट माना जाएगा। और मिसकंडक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें बहुत गहरे पनिशमेंट होते हैं। यानी जो पनिशमेंट आईसीसी अधिनियम में दिया गया है, पॉश अधिनियम में, उसके अतिरिक्त यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सर्विस रूल से आप गवर्न होंगे। तो सर्विस रूल में जितना भी पनिशमेंट दिया गया है उस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, कि कैसा कार्य आपने किया है उसके अनुरूप आपको दंड दिया जाएगा। और ये अगर किसी छात्र ने किया है तो छात्र के लिए ये इनडिसिप्लिन माना जाएगा। और इनडिसिप्लिन के लिए जो हमारे एकेडमिक कैलेंडर में प्रावधान है कि उसको कैंपस में, परिसर में प्रवेश करने से रोका जाए, उसको लाइब्रेरी विजिट करने से रोका जाए, उसको परीक्षा देने से वंचित किया जाए, कितनी गंभीरता का मामला है, उस प्रकार से हमको निर्णय लेना पड़ता है कि हम क्या रिकमेंड करेंगे। तो ये चीजें आती हैं। और प्लस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है नियोक्ता की जिम्मेदारी। यानी हर शिक्षण संस्थान का जो प्रमुख है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी डेवलप करे, क्योंकि यूजीसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी विल हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स सच टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यूजीसी ने अडॉप्ट की, उस पर अब पब्लिक कमिटमेंट शो कराना है, क्योंकि हम नीतियां बना रहे हैं, लेकिन उन नीतियों के प्रति हमारी और आपकी स्वीकार्यता कितनी है, हम उसमें कितने सहज महसूस कर रहे हैं। तो इसी पब्लिक कमिटमेंट के लिए इस तरह की वर्कशॉप्स वगैरह की जाती हैं कि आपको लगे कि नई समस्या वास्तव में गंभीर है। हमको एक स्त्री को एक वस्तु नहीं समझना है, एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं समझना है, बल्कि उसको अपने सहकर्मी का एक गरिमापूर्ण वातावरण देना है, क्योंकि राइट टू वर्क is a fundamental human right and it is inalienable human right। तो कल हम लोग ह्यूमन राइट डे मनाने जा रहे हैं। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि आज का 9 दिसंबर का दिन केवल इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि आज 8वीं एनिवर्सरी है उस एक्ट की, बल्कि 25 नवंबर से जो एक 16 डेज का एक कैंपेन चल रहा है, बहुत सारे संगठन उससे जुड़े हुए हैं, एनसीडब्ल्यू भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत फॉलो करते हैं इनको। तो वो बात भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25th November and 10th December will be celebrated as ह्यूमन राइट्स डे। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को हम लोगों ने उस दिन अडॉप्ट किया था। तो ये जो 16 दिन का स्पैन जान रहे हैं, इसको हम लोग वायलेंस अगेंस्ट विमेन के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें आती हैं। और फिर बात आती है कि ये जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उसको हम कैसे निवारित करें। तो ये कल इसका समापन होगा। तो ये 16 डेज का अलग चल रहा है। अब बात आती है कि जो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी पर मैं थी, कि एम्प्लॉयर की क्या क्या लाइबिलिटी होती है, किस तरह से उनको बात करनी होती है, और संसाधन उपलब्ध कराने हैं। यानी आईसीसी का गठन आप कर दिए, लेकिन आईसीसी मीटिंग करेगी तो उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए, उसके पास वीडियो होना चाहिए, उसके पास पेपर होना चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, उन लोगों को आने जाने के लिए कंफर्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बहुत एक एलोकेशन ऑफ बजट भी होना चाहिए। ये प्रावधान नहीं है अभी। हमको ना विनियमन में ये प्रावधान दिखता है, ना अधिनियम में प्रावधान दिखता है कि ए प्रॉपर एलोकेशन ऑफ बजट फॉर स्मूथ कंडक्शन ऑफ दिस कमिटीज फंक्शनिंग। तो ये कैसे होगा, इसके लिए तो बजट की आवश्यकता होगी। तो ये भी बनाए जाने की और एक्सक्लूसिवली इसको रखने की, एक एलोकेशन करने की जरूरत है। क्योंकि जितना ही हम सेमिनार करेंगे, जितना हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हमको पैसा चाहिए। जगह जगह आपको ये डिस्प्ले करना है कि आपके यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, व्हाट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हरासमेंट, व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज अवेलेबल। तो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डिस्प्लेड सो दैट द वुमन और द पर्सन हु एंटर्स इनटू द डोमेन, उसको ये पता चल जाए कि ये क्या चीजें हैं। और मैं बताऊं कि आपके इस विनियमन में कैंपस की तो इतनी विशाल परिभाषा दी गई है कि कोई भी एक जगह आप छोड़ ही नहीं सकते।
यानी आपके परिसर में यदि बैंक है तो बैंक, स्टेडियम है तो स्टेडियम, अगर आपके परिसर में कोई हेल्थ सेंटर है, कोई लाइब्रेरी है, या बस से आप उसको ले जा रहे हैं कहीं, तो वो सारी जगहें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दायरा माना जाएगा और वहां होने वाली किसी भी घटना की रिपोर्ट आप क्या हो सकती है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं कि अभी एडमिशन का दौर चलने वाला है, तो वो छात्र जिसने प्रवेश ले लिया है वो भी कंप्लेन कर सकता है, और वो छात्र जो अभी प्रवेश की प्रक्रिया में है, जो विश्वविद्यालय में आया है ये देखने के लिए कि भाई कट ऑफ क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको एडमिशन कब मिल रहा है, अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो वो भी आपके यहाँ रेमेडी पाने के लिए हकदार है। और थर्ड पार्टी हरासमेंट भी है, यानी जो व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर से किसी भी तरह से नहीं जुड़ा है, सपोज हमारा बीएचयू है और वहां पर विश्वनाथ टेम्पल है, कोई दर्शन करने आया है तो कहीं से नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर उसके द्वारा भी कोई ऐसी घटना घटित की जाती है तो फिर बीएचयू को उसका संज्ञान लेना होगा, वो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि शैक्षणिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बहुत गहरी है और उसको समझना है, कार्य करना है। और ये अधिनियम जो है उसमें भी ये बात कही गई है कि दिस इज इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको इस बाबत कोई और रेमेडी है, जैसे आप आईपीसी में जा सकते हैं, आप टॉर्ट में जा सकते हैं, तो कोई रोक नहीं है, आप जहां चाहें वहां आप इसका लाभ ले सकते हैं, आप उस कानून के प्रावधानों के तहत अपनी बात रख सकते हैं। तो कहीं हम कोई अंकुश नहीं लगाते, बल्कि एक एक्स्ट्रा रेमेडी आपको प्रदान करते हैं कि आप चाहें तो इस अधिनियम का भी लाभ ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस महिला के साथ घटना घटित होती है, यदि उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि उसको क्या उपचार उपलब्ध है, तो समिति का यह भी दायित्व है कि वह उसकी काउंसलिंग करते समय उसे बताए कि बच्चे तुम्हें ये रेमेडी है और तुम जहां चाहो वहां इसका प्रयोग कर सकती हो। कैसे करना है ये भी आप उसको बता सकते हैं। और कई बार उसकी स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए वो बहुत डिप्रेशन में है, नहीं मुकदमा दायर कर सकती या नहीं कंप्लेन फाइल कर सकती है, तो उसकी तरफ से कोई तीसरा उसका प्रतिनिधि बन करके भी ये कंप्लेन फाइल कर सकता है और उसको भी इंटरटेन करना होगा। ये प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वो किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है, किस तरह से उस महिला का हितैषी है, और उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ होगी। और इस अधिनियम में और विनियमन में दोनों ही जगहों पर सुलह का भी प्रावधान है। मतलब कहने का कि कहीं अगर इस लेवल पर ये महसूस होता है कि ठीक है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो एकदम से ऐसा ना हो जाए कि अब मुकदमा दायर हो गया तो कहीं पीछे नहीं हटना है, कंप्लेंट फाइल कर दिए तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप सुलह भी हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, तो वहां पर मुकदमे को या कार्यवाही को रफा दफा भी कर सकते हैं। लेकिन इसका आधार कभी भी आर्थिक नहीं होना चाहिए। यानी आप ये नहीं कहिए कि भैया 5,000 रुपया लेकर के आप अपनी परिवार वापस कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो कभी भी ये इसका आधार आर्थिक नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि अगर कुछ नियम और शर्तें होंगी जिसके तहत ये कहा जाएगा कि ठीक है आप लोगों के बीच में अगर सुलह हो गई है, आपने माफी दे दी है, तब भी अगर मामले का हम निस्तारण कर दे रहे हैं, तो आगे से आपको ये चीजें कहनी होगी कि नहीं ये हमारे कमिटमेंट है, इसको हम पूरा कर रहे हैं और इसके इन शर्तों को हम हमेशा पालित करेंगे। तो किसी भी शर्त या दशा जो आपके ऊपर इम्पोज की गई है, जो कंडीशन इम्पोज की गई है, अगर उसका आपने कभी भी वायलेशन किया तो फिर वो कार्यवाही समिति के पास ये अधिकार होगा कि फिर से वो कार्यवाही प्रारंभ कर सके। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कंडीशन इम्पोज होने के बाद कार्यवाही बंद होना केवल एक सशर्त रिहाई कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर ये देखने की बात है। और फिर हम आगे आते हैं कि अब आगे हम लोगों को किन चीजों पर चर्चा करनी है। तो वो आता है कि इस अधिनियम में हमने जो सबसे बड़ी बात है जो है मिसयूज की, कि एक प्रावधान ऐसा भी है यूजीसी के विनियमन में भी और अधिनियम में भी कि अगर कहीं किसी भी स्थिति में यह पता चलता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है, फ्रिवलस और वेक्सेशियस कंप्लेंट फाइल की गई है, तो वहां पर भी कार्यवाही की जाएगी और उस परिवादी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो सोचने वाली बात है
कि एक तो हमने बहुत प्रयास करके ये अधिनियम बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भय था कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और जब ये भय होता है तो कोई भी चीज कभी भी निराधार नहीं होती। हम सिरे से किसी चीज को खारिज नहीं कर सकते कि हम अगर कह दें कि नहीं भाई कोई ये प्रावधान का कोई औचित्य नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए, तो वो भी बहुत सही नहीं होता कई मर्तबे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत समय पर महिलाएं स्वयं महसूस नहीं कर पाती हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, और दूसरे लोग कई बार कुछ कॉन्स्पिरेसी कर देते हैं, कुछ उसको बरगला देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब बातें आगे बढ़ती हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि आज के समय में जो ये गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है, उसमें कोई भी किसी का भी इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ थोड़े कठोर प्रावधान इसमें है कि अगर सूचना गलत पाई गई या इस कार्यवाही का दुरुपयोग किया गया तो क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। वहां फिर हम लोगों ने एनसीडब्ल्यू के साथ मिलकर के थोड़ी सी सिफारिश की थी कि नहीं, इतना कठोर ना हो, अगर अगर गलत भी है तो पृष्ठभूमि उसकी देखी जानी चाहिए और उस हिसाब से माफीनामा कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए या इस तरह से चीजों को, या किन परिस्थितियों में हुआ है, सारी चीजों की एक होलिस्टिक अप्रोच में निर्णय होना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। क्योंकि आप अगर कंप्लेंट करेंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, साक्ष्य जुटाना पड़ेगा, और कई बार ऐसी घटनाओं का कोई साक्ष्य नहीं होता। अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप किया है तब तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई आपको कोई मटेरियल शेयर किया है तब तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन अगर आपके पास आकर के वो कोई हरकत करता है, उसका कौन सा स्क्रीनशॉट है, कौन सा प्रूफ है। तो ये बातें भी समझने वाली हैं कि ऐसी चीजों के बहुत गहरे साक्ष्य भी नहीं होते, और आपको बहुत जब भी आप निर्णय लें कि हाँ हमें कार्यवाही करनी है फलां के खिलाफ, तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि फिर लड़कियां ये सोचती हैं कि नहीं, अब हमको अलर्ट होना है, अब अगर उसका कोई मैसेज आएगा तो हम रख लेंगे और फिर उसको दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि आपके पास बहुत अच्छे गहरे पुख्ता सबूत होने चाहिए, क्योंकि किसी भी दांडिक कृत्य में जो भी कहीं हम कार्यवाही करते हैं, बिना साक्ष्य के कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखने की है, इसको भी हमको देखना चाहिए कि कैसे हम इन चीजों की कार्यवाही कर सकते हैं। तो जो पूरा का पूरा हमारा अधिनियम था, उसमें हम लोगों ने 3P का प्रयोग किया कि हम एक प्रोटेक्शन देंगे, हम एक प्रोएक्टिव एटमॉस्फेयर प्रदान करेंगे और प्रिवेंशन करेंगे कि ऐसी गतिविधियों का निवारण हो सके। और जो एक लड़की के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की समस्या होती है, तो उसको भी हमें दूर करना हमारी जिम्मेदारी है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी दूर किया जाए। और एक है इसको वो ऐसे तो AHA है, लेकिन मैंने पढ़ते समय उसको सिंड्रोम कहा, यानी एंगर, एग्रेशन और हेट सिंड्रोम। यानी अगर आपने समय पर किसी महिला के साथ जो ये घटना घटित हुई उसका निवारण नहीं किया, तो वो एंगर उसके अंदर आएगा, एग्रेशन आएगा, हेट होगा, और वो फिर समाज के लिए नहीं ठीक होगा। तो पूरे एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना हम सभी समाज के लोगों की एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, और हम सब इस सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। और महिला और पुरुष दोनों ही के अब वर्तमान समय में मायने बदल रहे हैं। वो सामाजिकरण जो पहले हुआ था उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। घर और बाहर दोनों जगहों पर सकारात्मकता की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। और ये सोचना पड़ेगा कि आप बाहर से घर आ रहे हैं तो घर में भी वो स्टीरियोटाइप ना हो, घर से बाहर जा रहे हैं तो बाहर में आपको ये ना हो कि ये घर में इनकी नहीं बनती इसलिए बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह की कुछ सोच से हमको ऊपर उठने की आवश्यकता है। तो ये जिसको हम लोग कहते हैं कि इट इज बैजरिंग नॉट बैंडरिंग, तो बैंटरिंग नहीं है, ये बैजरिंग है, इसको हम लोगों को समझना होगा। और हम कहते हैं कि द सूनर वी रियलाइज द लॉन्गर वी सर्वाइव। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वी डिजर्व ए डिग्निफाइड एंड कंजेनियल एटमॉस्फेयर टू वर्क एंड ग्रो एंड वी डिमांड फॉर इट। इज इट रियली टू मच टू आस्क फॉर? तो इतनी बातों के साथ मैं नमस्कार करूंगी आप लोगों को, और आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है शायद ये सबसे आई ओपनिंग थॉट रहा आपकी तरफ से, और बहुत सारी ऐसी चीजें हम सबको भी पता चली। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि वी द टीचर्स आर आल्सो नॉट बीन अवेयर ऑफ वेरियस थिंग्स। मैम एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, ये मैं कल से जब से मुझे मिला था तब से मेरा मन था कि एक सवाल हम पूछें कि जैसे अभी आपने कहा कि हमारे पास कई बार जैसे गुड टच बैड टच की बात हम बच्चों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को भी मैं सिखाती हूँ या अपने स्टूडेंट्स को भी मैं अवेयर कराती हूँ। तो मैम ऐसी कंडीशन में जहां पर हमारे पास सच में कोई सबूत नहीं है, अगर किसी ने मुझे गलत तरीके से देखा या मॉलेस्ट करने की कोशिश की, नहीं किया एग्जैक्टली बट कोशिश ही की, या इधर आई एम मॉलेस्टेड, सो अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जैसे आपने कहा, देन व्हाट शुड आई डू? शुड आई क्विट? शुड आई रिलीव द प्लेस कि मैं छोड़ दूं वो जगह नौकरी करना या पढ़ाई करना? या ऐसा भी कोई जैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की आपने बात की जो चीजें कही, क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं बीइंग फीमेल्स की? कहाँ से हम मैम वो साहस जुटाएं, क्योंकि सोशल टैबू आप जान रही हैं उससे निकलना, निकल करके एक लड़की के लिए एक सोसाइटी में जा करके ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक चैलेंज हो जाता है कि आई एम सर्वाइवर और मेरे साथ इस तरीके का हुआ है, मैं सफर कर रही हूँ। तो मैम अगर ऐसा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं जुट पाता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं मैम हम? देखिए, यही चीज है मीनाक्षी जी जिसके लिए हम लोग इस तरह की वर्कशॉप कर रहे हैं। वो वर्कशॉप करने का पर्पस ही यही होता है कि हम सबको ये बताएं कि अगर कभी आपको गुड टच बैड टच पता है कि क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि द मोमेंट यू रियलाइज इट इज अ बैड टच, यू हैव टू रिएक्ट अपॉन इट, इमीडिएटली यू हैव टू रिएक्ट। तो अगर उसने किया अपना, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, आप उसको चांटा मार दीजिए, आप उसको धक्का दे दीजिए, आप जोर से हल्ला कर दीजिए, तो जब आप ये सब करेंगे तो निश्चित तौर पर 4 लोग सुनेंगे। तो ये बात आती है कि यू जस्ट टेक एन एक्शन, आपको तुरंत यू हैव टू टेक एक्शन। तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्ट अपॉन करना पड़ेगा। और जब आप एक्शन लेंगे तो चीजें आएंगी कि भाई ये लड़की पागल तो है नहीं कि अनर्गल आपके ऊपर बरस पड़ी, कौन सी परिस्थितियां थी, क्या था, कैसी क्या बैकग्राउंड था, तो वो बातें आती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सहम जाते हैं कि ये हुआ क्या। उसके बाद फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं अब क्या करें, और फिर घर आकर के शेयर करते हैं। तो जो शेयर करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से शेयर कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग रखिए कि आज मेरे साथ ये हुआ, अपनी फ्रेंड के साथ आप बता रहे हैं, भाई अपनी फ्रेंड के साथ आप सारी बातें कर रहे हैं, वो भी बात आपने कही, तो दैट वाज द पर्टिकुलर मोमेंट, वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि वो एक घटना पहली बार ऐसे घटित हुई जब आपने किसी अपनी दोस्त के साथ उसको शेयर किया था, फिर उसके बाद ये घटना वहां घटित हुई। तो ये एक रिपीटेडली भी होता है, वन टाइम भी होता है। किसी को नहीं अपॉर्चुनिटी मिली दोबारा कुछ करने की, तो वो एक ही बार आपके साथ में कुछ किया, लेकिन आपके ऊपर उसका बड़ा ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट है, आप चाहते हैं कि उसको सबक मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको कहना होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जैसा मैंने कहा ना, ये पावर की बात है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को, महिलाओं को भी बहुत बतानी है, लड़कियों को भी बहुत बतानी है। होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमको एक एप्लीकेशन लिखनी है, सपोज ऑफिस में जाकर के, हमारे पास ब्लैंक पेपर नहीं है, A4 साइज का पेपर नहीं है, तो अब हम जा करके अगर किसी से मांगते हैं, सर मुझे प्लीज पेपर दे दीजिए, तो वो कहेंगे कि पेपर वो देगा, लेकिन पेपर देते समय उसको लगेगा कि मैं पेपर इसको दे रहा हूँ, बड़ा स्माइल करके पेपर मांग रही है, तो मैं इसको जरा इसका गाल भी टच कर सकता हूँ। तो ये बातें भी बहुत आपको समझने की आवश्यकता है कि आप मुस्कुरा के पेपर मांग के केवल पेपर ही नहीं मांगते, ये आप उसको एक अवसर भी दे देते हैं। बहुत सी चीजें समझने की जरूरत है, एक एक स्टेप पर आपको समझने की जरूरत है। और ये आपके जीवन के अनुभव हैं जो आपको ये बताते हैं। मैं कॉलेज में रहती हूँ, मैं अकेली महिला थी बहुत सालों तक वहां पर, और लड़कियां आती थी, मैंने लड़कियां आती थी कंसोल करना, उनको बताना हाउ टू बिहेव इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हाउ टू सर्वाइव। आप सोच सकते हैं इतने लड़के पढ़ रहे हैं, टीचर्स हैं, उसमें मैं अकेली महिला, मुझे कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। और टीचर्स का कोऑपरेशन कि आपको इंस्ट्रूमेंटल नहीं बनना है, कि क्लास में बार बार आपको किसी लड़के को ये नहीं बोलना है कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अरे नहीं पढ़ रहा है तो छोड़ दो उसको, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है। इस तरह की चीजें होती हैं जो हम लोगों को रोज सीखनी है। आज की तारीख में मैं लेक्चर दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही पूरी बात खत्म हो गई, कल होकर के कोई और बात भी होगी, उसे भी सीखने की आवश्यकता होगी। तो हर दिन हमें सीखना है, और जितना हम सीख चुके हैं उतना अपने बच्चों को बताते चलना है।
थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए ये बहुत इंस्पायरिंग रहा और आपकी सारी ये बातें। अब मैं अपने स्टूडेंट से और बाकी फैकल्टी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू मे रेज द हैंड, क्योंकि चैट बॉक्स तो फिल्ड है मैम के लिए अप्रिसिएशन के लिए और थैंक यू के लिए कि सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। डेफिनेटली आई विल शेयर दैट विद मैम ऑल्सो। हाँ, बट अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो डेफिनेटली दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क, कि आप पूछिए कि मैम अगर ये स्थिति मेरे साथ हो तो मुझे क्या करना चाहिए। मैम वन स्टूडेंट इज देयर, प्रिया कुमारी मैं ये भी कहना चाहूंगी जी। हाँ, मीनाक्षी जी मैं ये कहना चाह रही हूँ जी कि मैम। ये बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं और ये सारी चीजें अगर आप रिकॉर्ड कर रही हैं तो आप इसको YouTube वगैरह पर भी डालिए, ताकि कि जी मैम। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिसेमिनेट हो। जी जितना ज्यादा लोग सुन सकेंगे उतना ज्यादा उनमें नॉलेज बढ़ेगी। और हम ये केवल अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक अवेयरनेस चला रहे हैं। बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, जी जी बिल्कुल मैम, आपकी इस बात को हम लोग बिल्कुल लागू करेंगे अपने ऊपर। मैम प्रिया अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। प्रिया कुमारी है मैम, पहले बेटा बताइए आप किस क्लास के हैं एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। प्रिया कुमारी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून। मैम माई सेल्फ प्रिया कुमारी, मैं BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर। मैम मेरे पास क्वेश्चन था कि IPC के सेक्शन 375 में जो कि रेप और सेक्शन 497 में एडल्ट्री को डिफाइन किया गया है, मैम बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? अच्छा बेटा, अभी तुम लॉ नहीं पढ़ी हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता चल रहा है। रेप ये होता है जो कि विदाउट हर विल एंड अगेंस्ट, माने विदाउट हर कंसेंट एंड अगेंस्ट हर विल, ये दो चीजें होती हैं कि आपकी सहमति के बिना और आपकी इच्छा के विरुद्ध जो कार्य होता है तो उसको हम रेप की कैटेगरी में रखते हैं। ये दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, विदाउट योर कंसेंट एंड मैम आप म्यूट हो। उसकी क्या बोलते हैं, एडल्ट्री की। तो एडल्ट्री को मैं ये बताऊं कि एडल्ट्री अभी डीक्रिमिनलाइज हो चुका है हमारे IPC से। अभी जोसेफ शाइन का केस आया था पिछले साल, तो उसमें इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, क्योंकि उसमें महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने पति के खिलाफ कभी मुकदमा दायर कर सके। केवल पति के को ही यह अधिकार था कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ जो उनकी पत्नी के साथ जार कर्म करता है। तो एडल्ट्री क्या है कि वो एक विवाहित महिला के साथ जब कोई पुरुष कोई लैंगिक संभोग करता है तो वो एक अपराध होता है। ये परिस्थिति थी। तो उसमें पति को ये अधिकार होता था। अब आप देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं जेंडर कंस्ट्रक्ट, कि भारतीय दंड संहिता में अध्याय का नाम है ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज रिलेशनशिप। तो मैरिज रिलेशनशिप में तो हस्बैंड वाइफ दो हुए, दोनों को इक्वल राइट होना चाहिए, लेकिन कंप्लेंट फाइल करने का राइट केवल हस्बैंड के पास था। तो बहुत सारे इक्वालिटी के ग्राउंड पर इसको सब्सटेंटिव इक्वालिटी, प्रोसीजरल इक्वालिटी पर केस आए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत इंटरफेयर नहीं किया और केवल पति को अधिकार थे। तो बाद में जोसेफ शाइन के केस में कहा गया कि नहीं, अब इसको हम अपराधिता के दायरे से बाहर करते हैं, यानी अब ये अपराध नहीं होगा। लेकिन सिविल लॉ जो है, जिसे डाइवोर्स है, तो डाइवोर्स का एक आधार होगा, यानी आपकी पत्नी यदि किसी अन्य के साथ एडल्ट्रस यूनियन बनाती है तो यू कैन टेक डाइवोर्स, बट यू कैन नॉट फाइल क्रिमिनल केस अगेंस्ट दैट पर्सन। तो अब जैसे होता है ना कि हर तरीके का समाज इस भारतवर्ष में बन रहा है, परमिसिव सोसाइटी भी बन रही है, तो इसको हम सेक्सुअली परमिसिव सोसाइटी कहते हैं। जहां पर इस तरह की चीजें आएंगी तो क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा, लेकिन सिविल केस में आप डाइवोर्स का एक आपके पास अधिकार होगा, ये आप कर सकते हैं। तो रेमेडियल बेसिस पर भी डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर भी डिफरेंस है। तो रेप इज एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड एडल्ट्री इज डिफरेंट। Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Now we have another question from Manisha Kumari. Manisha, unmute yourself beta. Good afternoon, ma'am. My name is Manisha Kumari. I'm a student of BA second year Political Science Honors of Arya Mahila PG College. My question is that, ma'am, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया किसी लेडी के साथ और वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करती है, तो पुलिस जो है वो कंप्लेन लिखने से पहले तो इनकार करती है और वो भी सोचती है कि ठीक है इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो भी कुछ उनके साथ गलत करने की ऐसी कोशिश करती है। तो फिर उस केस में क्या करे वो लेडी? पुलिस के पास जाती है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। पुलिस के पास जाती है, वहां भी उसके साथ गलत होता है।
यही है। अगर मैम हाँ, देखो ये तुम्हारी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये तुमने कोई कल्पना की बात नहीं कही है कि यदि वो जाती है और ऐसा होता ही है और ऐसा हुआ ही है। जो तुकाराम का केस था, तुकाराम के केस में, जिसको हम मथुरा रेप कांड के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस केस, माने इनफेमस केस है, कुख्यात केस कहेंगे, प्रसिद्ध तो नहीं कहेंगे। तो ये कुख्यात जो मामला है वो केस यही था कि उस लड़की के साथ में वहां पुलिस स्टेशन में चीजें होती हैं, और उस समय का हमारा जो रेप लॉ था वो बड़ा कंजर्वेटिव था, और डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट के इस तरह से आ जाते हैं कि उस लड़की को कोई रेमेडी नहीं मिल पाती है। ये पता चलता है कि नहीं, ये जो है वो पहले से इसकी हैबिचुअल थी, जिसको हम लोग 2 फिंगर टेस्ट वगैरह कहते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं हो पाई थी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट को ओपन लेटर लिखा। उसमें आपके लौतिका सरकार मैडम थी, उपेंद्र बख्शी जी थे, और 2 और टीचर थे। इन लोगों ने ओपन लेटर लिखा कि व्हाट द हेल सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ केसेस। तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि फिर जाकर हमारे रेप लॉ में एक भारी संशोधन उस समय हुआ था। इसीलिए जब निर्भया का स्कैंडल आया तो हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखी कि फ्रॉम मथुरा टू निर्भया, हम एक नया नाम, क्योंकि मथुरा उसका जो था एक हम लोग नाम देते हैं, तो मथुरा से निर्भया तक की जो चीजें आई, और निर्भया आया तो भी हम लोगों ने विधियों को बदला। तो होता क्या है कि लॉ मेकिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम बहुत बार नहीं बोलते हैं, नहीं रिस्पॉन्स देते हैं, तो लॉ एज इट इज पड़ा रहता है। और जब सोसाइटी एक हल्ला बोल करती है, जब उस पर धरना प्रदर्शन होता है, जब कैंडल मार्च होते हैं, तब विधियां बदलती हैं। तो ये जो आपके पास विधि आई है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका भी एक लंबा इतिहास है कि अगर निर्भया की घटना ना घटित होती तो 2013 में ये अधिनियम ना आया होता, और फिर हम लोग इस पर इतनी गंभीरता से चर्चा ना कर रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी घटना घटित होती है तो प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो, अब आप सोशल मीडिया है, ये सीसीटीवी कैमरास हैं, इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि किसी भी पुलिस थाने में सीसीटीवी है अगर लगा तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर उस जगह पर जहां पर 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वहां सीसीटीवी होना चाहिए, क्योंकि जहां आप इस तरह की चीजें करते हैं आपके प्रति हम कौन सा वॉच डॉग रख रहे हैं वहां पर, तो वो चीज होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर, इसको हमको गवर्नमेंट के लेवल पर, ये शासन के लेवल पर देखना है कि ये चीजें हम कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो रेमेडी मिलेगी। और उसको उन लोगों को अब ज्यादा संगीन उसमें रखा गया है कि आपकी एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो जाती है। जब आप विश्वासिक संबंध में किसी के साथ, भाई पुलिस के पास जा रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में जाने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी शिकायत को लेके जा रहे हैं, न कि वहां अपनी शिकायत बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसलिए वहां पर ये चीजें देखनी है और इसको अश्योर करना है। Thank you, ma'am. Next question from Nikita Singh. Nikita. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. My name is Nikita Singh. I am second year student of BCom Honors. So, ma'am, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अगर हमारे साथ कुछ होता है, मिसबिहेव होता है किसी टीचर के द्वारा एक कॉलेज में, तो मैम वो जो हिम्मत आती है कि अपने पेरेंट्स को बताओ फिर कंप्लेन करो, तो मैम यूजुअली सिचुएशन ये होता है कि पेरेंट्स आपका नाम कटवा देते हैं, आपकी पढ़ाई छूट जाती है। तो मैम वो जो डर हमारे अंदर रहता है कि नहीं हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हम सहते रहते हैं, खुद के अंदर उसे खत्म कर देते हैं, और वो जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो मैम मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है कि वो हिम्मत कैसे जुटाएं, क्योंकि मैम आपने बोला निर्भया केस जो हुआ था, तो मैम उसका तो रिजल्ट 2020 में आया, जितने भी थे सबके, जितने भी अपराधी थे उन्हें क्या कहते हैं डेथ, मतलब उन्हें फांसी की सजा तो मैम 2020 में, मतलब उन्हें फांसी तो 2020 में दी गई। तो इतना लंबा चौड़ा पीरियड, हमें कोर्ट में जाना, हमें पुलिस से डील करना, तो मैम वो हिम्मत कैसे जुटाएं कि अगर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो हिम्मत जुटाना कि अपने फैमिली को बताओ और कंप्लेन करो, इवन अगर कोई आपका साथ नहीं देता है तो भी। तो मैम वो हिम्मत कैसे लेके आए, मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है। देखो, अब तो तुम्हारे पर्टिकुलर संदर्भ में अगर बात करूं तो सबसे पहले तो मैं ये विश करूंगी कि कभी ऐसा मौका ना आए, और दूसरी चीज कि जब आप प्रश्न पूछने की हिम्मत रखते हैं तो आप अपने साथ घटित होने की घटना की रिपोर्ट करने की भी हिम्मत रखते हैं। दिस इज अ डेड श्योर थिंग, आप निश्चित तौर पर कंप्लेन करेंगे, इसमें कहीं कोई शक सुबह की बात ही नहीं है। और दूसरी चीज कि विश्वास हासिल करना पड़ता है अपने पेरेंट्स का,
और उनको ये बताना पड़ता है कि आई वॉज नॉट एट फॉल्ट, क्योंकि ये प्रिजम्पशन होता है कि जैसे ही हम कहते हैं तो लगता है कि एक्चुअली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि विमेन आर बीइंग एट फॉल्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वुमेन। तो इसलिए जो ये समाज की धारणा है उससे हमको ऊपर उठने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज मैंने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आपके कॉलेज में जिस शिक्षक ने ऐसा किया, आप ही के कॉलेज में कुछ ऐसे टीचर होंगे जो आपको बड़ा अच्छा माहौल देते होंगे, बहुत आपकी बात सुनते होंगे, उनसे आप जाके शेयर कीजिए। क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप बिना घर में बताए भी कार्यवाही करेंगे तो ना आपका नाम उजागर होगा, ना आप मिस्टर एक्स वर्सेस मिस सो एंड सो करके ये केस चलेगा। तो कहीं भी आपके नाम नहीं आना है, आपको रेमेडी मिलनी है, प्रूफ होना चाहिए। और फिर उसके बाद में जब आप देखिए, कोई भी इतिहास ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कदम उठाने पड़ते हैं। अगर नरगिस मिर्जा ने एक मुकदमा ना किया होता तो एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस ना आया होता और आज एयर इंडिया में विवाहित महिलाओं नौकरी ना कर रही होती। तो मुकदमा करना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, कानून बनवाना पड़ता है, समाज बदलना पड़ता है। Thank you, ma'am. Really, thank you, ma'am. It means a lot for me. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I request Aanchal Roy. Aanchal, unmute yourself, beta. Ask your question. Hello, ma'am. I'm Aanchal Roy from BA Psychology Honors, second year. I just want to ask, it's a lame question, I know, but how women are weak? I mean, in my colony, there's a girl, I guess she's 10th pass out, but there's an incident, एक भैया ने उनको कुछ बोला, exactly उस लड़की की गलती थी, but she said after everything happened कि अगर मैंने उस पर रेप केस कर दिया तो वो क्या ही कर लेगा मेरा। ये मतलब एटलीस्ट सबको पता है कि मतलब हाँ ऐसा कुछ होता है, अगर आपके साथ गलत होता है तो ये कर सकते हैं, बट उसके बाद भी हम लोग कहते हैं विमेन्स आर वीक एंड एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ये होता है ना कि अगर आप जो बोलेंगे तो सामने वाले के दिमाग में वो परसेप्शन आएगा कि हाँ विमेन्स आर वीक, दे कांट डू एनीथिंग इफ आई डू समथिंग टू हर। ठीक है, मैं आपकी बात भी समझ गई। तो इसमें ये कहना है कि देखिए, जो कानून बनते हैं वो उस लड़की को ध्यान में रख करके नहीं बन रहे हैं जिसने आपने जिसका इलस्ट्रेशन दिया कि मैं ये कर लूंगी तो क्या होगा, बल्कि कानून बनते हैं उस एक आम महिला को ध्यान में रखते हुए जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, जो लोग प्रताड़ित हो रही है और जो अपनी बात को नहीं रख पा रही है। और मैं आपको बताऊं कि कई बार महिलाओं के साथ जब कोई एनजीओ जुड़ता है, जैसे भंवरी देवी के केस में विशाखा नाम की एनजीओ ने काम किया और शक्ति मिल्स का केस था उसमें फ्लेविया एग्नेस ने काम किया, तो जब कोई संगठन जुड़ता है किसी महिला के साथ तब जाकर के उस महिला को वास्तव में न्याय मिल पाता है। और अदरवाइज आप जो कह रहे हैं कि रेप का केस कर दूंगी तो होगा ही क्या, आप फाइल करने तो जाइए, आपके पास अगर प्रूफ, मैंने वही कहा कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो कौन आपके केस की बात सुनेगा। तो जब आप फेक केस थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट अगर उसने करा तो एटलीस्ट उस लड़की का तो मतलब इमेज खराब होगा ना सोसाइटी में, कुछ ना एटलीस्ट करेंगी। देखिए अब आप ये समझ लीजिए, इमेज को लेकर के आप ये बात समझ लीजिए, मैं शैक्षणिक संस्था के संदर्भ में पूरी तरह से बात कह दूं कि कई बार ऐसा होता है कि पेपर में अगर आता है कि भाई फला शिक्षण संस्था की ये घटना, तो उस शिक्षण संस्था को ये नहीं समझना चाहिए कि कहीं से उसकी बदनामी हुई है, बल्कि उसको ये समझना चाहिए कि हाँ, हमारी शिक्षण संस्था में हमने उन महिलाओं को ये वातावरण उपलब्ध कराया है कि वो अपनी आवाज उठा सकती है और उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। अब मामले का निर्णय होगा, निर्णय में यदि वो सही होती हैं तो न्याय मिलेगा, यदि गलत होता है तो उसके लिए भी प्रावधान है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो गलत, मैं यही कह रही हूं कि जो वो लड़की है उसको भी ये समझाने की जरूरत है और ऐसे सभी लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप किसी भी कानून का प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक दुरुपयोग होता है तो हजारों हजार लोग उसके उपयोग से वंचित रह जाते हैं। तो हम हमेशा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। लॉज आर मेंट फॉर सोसाइटी, तो लॉ इज देयर टू हेल्प यू, नॉट देयर for abuse or misuse
तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई करता है तो उसको जनरलाइज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे ही सोसाइटी एडवर्स है, और अगर एक केस भी ऐसा होता है तो उसको इतना हाईलाइट करते हैं जैसे लगता है कि सारे की सारी महिलाएं ही ऐसा कर रही हैं, तो वो बड़ा खराब होता है। हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी हमको नहीं देने हैं, हमको इंडिविजुअल को फोकस करना है, जनरलाइज नहीं करना है चीजों को। ये बात आपके संदर्भ में। And then women are not the weak, their mentality are not that developed कि मतलब वो जाके केस कर सकते हैं, but we shouldn't say ना women are weak, women are weak. No one says that women are weak actually. When you started, you said it, women are weak. नहीं, अब आप सेना में जा रही हैं, अब आपको परमानेंट कमीशन मिलने जा रहा है। where women are weak? No, where women are weak, rather the circumstances in which they are dumped, जिसमें उनको हमने डंप करके रखा है वहां से, क्योंकि भारत की विशालता को आप नहीं जानते हैं, आप एक SC/ST वुमन की गंभीरता को नहीं जानते हैं, आप एक डाइवोर्सी वुमन के प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हैं, तो आप एक पढ़े लिखे अच्छे माहौल में पढ़ बल रहे हैं तो आपको लगता है वेयर विमेन आर वीक। तो आपको मैं बताऊं, एलिजाबेथ की एक स्टोरी आपके लिए ठीक होगी कि जब एलिजाबेथ ने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की है, तो वो आता है कि वो रोटी के लिए लाइन में लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि they should eat cakes, why they are standing for roti? उनको पता ही नहीं है कि मतलब रोटी की क्या जरूरत है, तो केक की बात वो करते हैं। तो इस तरह से हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि किस महिला को कितनी लॉ की जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम। नाउ लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, क्योंकि मुझे लगता है सब पूछते ही जाएंगे और हम लोग कभी एंड ही नहीं कर पाएंगे। सोनम यादव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, इफ आई एम ऑडिबल टू यू। सोनम यादव, अनम्यूट करिए अपने आप को बेटा और अपना क्वेश्चन पूछिए। वीडियो करने को पता नहीं रिस्पॉन्स नहीं करे। चलिए, हम प्रिंसिपल मैम भी वापस वीडियो ऑन कर लिया है, हमें लगता है शायद मैम भी कुछ कहना चाह रही है। मैम का फेस ऐसा बता रहा है कि मैम भी कुछ पूछना सुन ही रही है हम लोगों की। सच में मैम, हमें लगता है कि शायद बहुत जरूरत है हम सबको, सारी फीमेल्स को, कि एक बार कॉलेज में इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग रेगुलर कोर्स पे कराएं। और आप सबको मैं बता दूं कि सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो कॉलेज कभी आए हैं प्रीमाइसेस में। हमारे कॉलेज में सच में सेल है जो काम करती है। आपके पास जो मैम ने जैसे जो बताए वो सारी रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, कंप्लेन बॉक्सेस आर देयर, आप वहां पर बिना किसी नाम के। और कंप्लेन बॉक्स भी बच्चों एक ऐसी एरिया में लगा है जहां पर कैमरा नहीं है। अगर आप उसमें जाकर के अपना कंप्लेन फाइल करते हैं तो ना आपका कहीं CCTV में रिकॉर्डेड होगा कि किस स्टूडेंट ने किया, ना आपका नाम आएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप एक ऐसे कॉलेज में हैं जहां पर हम लोग भी आपके आइडेंटिटी को और प्रोटेक्शन को लेकर के काम करते हैं। अगर आप अकेले भी जाकर के प्रिंसिपल मैम के पास या किसी कमेटी मेंबर के पास या किसी टीचर के पास जिससे सच में इतने दिनों में पढ़ करके आपको लगता है कि हाँ हम उससे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमको वो करना चाहिए। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि अब ऑफिशियल थैंक यू के लिए मैं डॉक्टर मंजू बनिक मैम को कॉल करती हूँ। मैम आवाज बंद करिए, डबल आवाज आ रहा है। थैंक यू मीनाक्षी। थैंक यू मीनाक्षी। और सबसे पहले मैं अपनी वक्ता प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैम को धन्यवाद के साथ साथ आभार भी व्यक्त करती हूँ कि मैडम ने आज जो है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजंस एंड रेडसियल एक्ट 2013 के संदर्भ में इतनी बारीकी से और जहां जहां पे संशोधन होता गया उस संशोधन के विषय में इतनी बारीकी से विस्तार से इन्होंने चर्चा की। और आज ये वर्चुअल प्रोग्राम जो है हम लोग के लिए लगता है बहुत सफल रहा है, और क्योंकि सारे बच्चों की जिज्ञासाओं को भी आपने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही कूल होकर के समझाया और बच्चों ने भी सुना समझा।
और ऐसा हम लोग सोचते हैं कि अब आगे चल करके इस तरह का हम लोग वर्कशॉप करेंगे जिसमें कि सारे बच्चे अपनी जिज्ञासाओं को रखे सामने और उसका सॉल्यूशन जो है हम प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैम से मांगते रहेंगे आगे के लिए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने कम समय में आपने हम लोग के निमंत्रण को स्वीकार किया और कम समय में ही इतने विस्तार से इतनी बारीकी से इस सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के संदर्भ में जो एक्ट बना हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पे वर्क प्लेस ऑफ वुमेन के लिए है, तो जो हायर एजुकेशन हो या जैसा कि मैडम ने बताया कि वो प्राइमरी हो या मिडिल जो है स्कूल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जहां पर भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह का जो इंसिडेंट होता है उसके संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये एक्ट बना हुआ है इसकी जानकारी जो है सचमुच हम लोग को भी नहीं थी, बहुत कुछ हम लोगों ने भी सुना आज, तो समझ में आया कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए और बच्चों को भी हम लोग आगे के लिए इसमें जागरूक करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम अपनी प्रिंसिपल मैम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी और बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर की हमारी मैडम है। ये कल जैसे ही आया, मैडम ने तुरंत वहां मीनाक्षी बैठी हुई थी तो उनको देख करके और शाम घर जैसे ही पहुंच रहे हैं फोन आ गया कि कल एक ये प्रोग्राम आप लोग को करना है, तो हम लोगों ने सर इसको स्वीकार किया और आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ। इसी के साथ हम डॉक्टर बिंदु लाहिरी मैडम को भी धन्यवाद देंगे कि इन्होंने जो है विषय की स्थापना की आज, और हम लोग जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो अपने कॉलेज की बनी हुई सेल है उसमें हम लोग भी इसमें कार्यरत हैं और इसमें हम लोग मिलकर के एक कमेटी में काम करते हैं। और बच्चों के लिए जैसा कि अभी मीनाक्षी मैडम ने बताया कि आप लोगों के लिए भी एक लेटर बॉक्स वहां रखा हुआ है और आप लोग उसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे स्वप्ना मैडम हैं, वो भी इस कमेटी से जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी धन्यवाद देंगे, टाइम से आकर के उन्होंने भी सुना और पूरे जोश के साथ बैठी रही। साथ ही लास्ट में हम अपनी संचालिका डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी को बहुत ही हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कहा मैडम आपको कुछ नहीं करना है, बस आकर के आप थैंक्स बोल दीजिएगा, हम सब कर लेते हैं। और बच्चों आप लोगों को ये भी बताया कि जब कभी भी इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो कि हम वीक हैं या हमको कहाँ से मिलेगा, ये हमको हेल्प कहाँ से मिलेगा, तो आप जरूर जो है मीनाक्षी मैम से कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये भी जो है काउंसलिंग करती हैं बच्चों का और बहुत ही प्रिय और मृदुभाषी और बहुत ही एक्टिव टीचर हैं हमारे यहाँ की, और इनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि शॉर्ट पीरियड में इस चीज को कंपाइल करके किस तरह से इन्होंने इस प्रोग्राम को रखा। और साथ में हमारे जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी स्टाफ हैं वो भी इससे जुड़े रहे, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और आज का ये प्रोग्राम के लिए स्पेशली हम मैडम को फिर से धन्यवाद देते हैं और विभा मैम को भी, ब्रिजवाला मैम और जो है अदर्स जितने भी हमारे टीचर्स हैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इसमें बहुत ही उन्होंने जैसे जिज्ञासा अपना दिखाया और प्रश्न रखा और सुना इतना टाइम से बैठ करके, एकदम शॉर्ट नोटिस थी जो हम लोगों के लिए, और हम लेकिन बहुत ही अच्छा और सफल रहा ये हमारा कार्यक्रम। यस, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यस मैम, अगर आपकी प्रिंसिपल मैडम हो साथ में तो हम लोग लास्ट में 1 मिनट का मौन रखेंगे जो हमारे बिल्कुल रावत जी का निधन हो गया आकस्मिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, उसके लिए हम लोग ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ओके मैम, और आज का इस प्रोग्राम के लिए सभी को पुनः धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Now, as requested and suggested by Vibha ma'am, I request all of you to please pay 1 minute silence. जो कल हमारे साथ दुर्घटना घटित हुई, हम सब ने देखा और पूरा हिंदुस्तान मुझे लगता है हम सब शोक में हैं CDS विपिन रावत सर का। सो 1 मिनट के लिए सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और 1 मिनट का मौन।
ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। अब एंड करते हैं। आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू लीव द मीटिंग एंड थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am.